तो स्टूडेंट्स आज सरफेस केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एड्सॉर्प्शन. First question is adsorption is the phenomenon in which a substance dash dash dash, and you will be given the 4 options. Okay, so adsorption is the phenomenon in which the substance, so it accumulates on the surface of other substance, goes into the body of the other substance, remains close to the other substance and oxidizes or reduces to the other substance. So answer is A option, because adsorption is occurred on the surface, so it accumulates, means it is spreaded on the surface of another substance, and that phenomenon is known as adsorption. If I say absorption, then answer 2, answer will be 2, goes into the body of the other substances. Okay, so option A. So the phenomenon in which the molecules of adsorbate accumulates on the surface of adsorbent, and it is known as adsorption. Okay, वो नहीं आएगा यहाँ पे. Okay, so option A is the correct answer. Next one is adsorption is always. Now tell me which is the correct answer. Exo or endo? Okay, during the adsorption there is always decrease in residual forces. Good, so answer 2 is the correct answer. Next one, option 2 is the correct answer. Which of the following is not considered as a adsorption? Yes, sponge placed in water, extraction of noble gas by charcoal. Good, it is adsorption. Finely divided charcoal stirred in water, dilute acetic acid. Good, decolorization of sugar by animal charcoal. Okay, all are adsorption phenomenon. Sponge placed in water, it is an example of absorption. Okay, good. Now next question is sorption. What is sorption? Sorption, bulk phenomenon, surface phenomenon, both, and answer is dispersion. So answer is both, because here sorption में दोनों फिनोमिनन होते हैं. कौन कौन से दोनों फिनोमिनन? तो देखो, बल्क भी होता है और सरफेस भी होता है, बिकॉज sorption इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two phenomenons. Which one? Good, adsorption and absorption. Okay, good. Next one, which of the following substances act as adsorbent? Adsorbent का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है? एड्सॉर्बेंट मतलब जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होगा. ओके,
which the substance which provides the surface, and on the surface of such substance adsorption is occurred. So silica gel, metal, and colloid. So answer is all. Okay, metals like nickel, copper, Ag, Pt and the colloids. इसमें colloid कौन है? तो देखो थर्ड ऑप्शन है, सिलिका जेल इज ऑल्सो colloid. ओके और आपको पता होगा कि जब भी रिडक्शन रिएक्शन करनी होती है तो NiPtPd हम लिखते हैं और इन सबके सरफेस पे हाइड्रोजन का कोटिंग होता है, कोटिंग दैट इज एडसॉर्प्शन. ओके नेक्स्ट वन, the coloring matter removed by the animal charcoal during the purification of the sugar acts as adsorbate, adsorbent, adsorber and catalyst. So sugar, बोलो क्या होगा? एड्सॉर्बेंट. जस्ट मिनट, सुगर नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा चारकोल. चारकोल इज एड्सॉर्बेंट. कलर्ड पार्टिकल्स आर, कलर्ड पार्टिकल जिसका एड्सॉर्प्शन होता है वो कलर्ड पार्टिकल्स क्या होंगे? गुड, एड्सॉर्बेट. कैटलिस्ट तो इसमें होता ही नहीं है. और एब्जॉर्बर वो तो एब्जॉर्प्शन में होगा. और यहाँ पे एनिमल चारकोल जो कलरिंग पार्टिकल्स जो रिमूव होते हैं, सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज एड्सॉर्प्शन. ओके, सो ड्राई मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल पार्टिकल्स एंड द डेप्थ ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस एप्रिसिएबल. इट मीन्स चारकोल एक्ट, देखा है यहाँ पे चारकोल ही लिखा है, एक्ट एज एड्सॉर्बेंट. मतलब यहाँ पे सुगर नहीं आएगा. ओके यहाँ पे चारकोल आएगा. नेक्स्ट, the forces operating between the adsorbate and the adsorbent in a physical adsorption. Again, the forces operating between the adsorbate and the adsorbent in the physical adsorption are van der Waals, chemical, covalent and all. Answer is van der Waals. Very good. Why van der Waals? Because here physical adsorption word is given. If I say chemical adsorption, then answer is chemical forces. Okay. Good. Physical adsorption is reversible, decreases with increase in temperature, multi-layer and all of these. All of these. इसके लिए आपको वो टेबल लर्न करना होगा. ओके नेक्स्ट, physical adsorption is useful in producing colorless material, producing low pressure, producing high vacuum and all. Answer is all. Okay next, physical adsorption is appreciable. Answer is very good, low temperature, because with increase in temperature adsorption decreases, because physical adsorption is a weak van der Waals force applying adsorption. That's why it occurs at low temperature. Which statement is correct? Physical adsorption is a multi-layer. Yes, non-directional and non-specific. Non-specific का मतलब क्या है? Any gas can be absorbed on any surface.
during the physical adsorption. So it is non-specific. Chemical adsorption is a specific, means whenever a chemical bond is possible between adsorbate and adsorbent, then after it is occurred. Chemical adsorption is a unilayer, उसका एक ही लेयर बनेगा, क्योंकि एक बार एड्सॉर्बेंट की सरफेस अवेलेबल होती है तब तक वो होगा, जब एक बार पूरा का पूरा एड्सॉर्प्शन हो जाए उसके बाद सरफेस अवेलेबल नहीं होगी. ओके, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. सो हियर आवर आंसर इज नंबर 4. गुड. Which of the following is not the characteristic property of the chemisorption? Reversible, specific, multi-layer phenomenon and heat of adsorption. Is not characteristic of. Okay, हाँ वो multi-layer नहीं होगा. मतलब अब theory learn हो गई आपकी, है ना? Good. चलो next. Which of the following is the characteristic property of physisorption? बोलो. Multi-layer. Very good. Next. In the spontaneous adsorption process. ये थियोरी एक बार अच्छी तरह से लर्न कर देना. हाँ, कौन सी? डेल्टा एच और डेल्टा जी वाली स्टार्टिंग में ही दी है ना, एड्सॉर्प्शन चैप्टर 2 में, सॉरी चैप्टर 5 में, तो वो एक बार अच्छी तरह से लर्न कर देना. इन स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस डेल्टा एच इज सफिशिएंटली नेगेटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज 0 एंड ऑल ऑफ अबव. सो आवर आंसर इज 1, बिकॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए. डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट इज लेस देन 0. तो डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन टी डेल्टा एस. तो यहाँ पे डेल्टा एच अगर सफिशिएंटली नेगेटिव है तब तक स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती रहेगी. ओके, सो हियर आवर आंसर इज 1, बिकॉज डेल्टा एच मस्ट बी सफिशिएंटली नेगेटिव. जब तक वो नेगेटिव रहेगा तब तक वो रिएक्शन होती ही रहेगी. ओके, नेक्स्ट. The rate of chemisorption decrease with increase of pressure. It is independent of pressure, is maximum at 1 atmospheric pressure and increase with the decrease of temperature. Answer. इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. प्रेशर क्योंकि उसमें प्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो केमिकल बॉन्ड बनता है. वान डर वाल्स फोर्स में हम जितना प्रेशर लगाए तब तक एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा. आपने ग्राफ भी देखा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक्स बाय एम और पी का ग्राफ. ओके, आइसोथर्म है ना ये. ओके, और उसमें ग्राफ कैसा है कि स्टार्टिंग में एज प्रेशर इंक्रीजेज एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी कॉन्स्टेंट बिकॉज मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन इज अकर्ड. एंड याद हो तो चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी, अगर आप मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करो फिर भी एड्सॉर्प्शन ना हो तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट. Chemisorption involves multi-layered, unilayered, zero-layered and bi-layered. Answer is unilayered. Chalo, next. Which is more selective? Physical adsorption, sorption, van der Waals adsorption, chemisorption. Answer. Chemisorption, because it is selective. Selective means specific. Okay, because only some adsorbent surfaces adsorbate molecules from chemical bonds. Chalo, factor influence adsorption. The extent of adsorption of gas on the solid depends upon nature, pressure, temperature and all. So extent of adsorption
डिपेंड्स ऑन ऑल द फैक्टर्स। प्रेशर कितना होगा वो भी, टेम्परेचर पता है ना, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। नेचर ऑफ गैस मतलब कौन सा गैस है जो इजीली लिक्विफाई होता है ना, उनका एड्जॉर्प्शन जल्दी होता है। नेक्स्ट, कंडीशंस फेवरेबल फॉर मोर एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बोलो। इजी है। सरफेस एरिया ज्यादा हो तो फिर एड्जॉर्प्शन तो ज्यादा होगा, मतलब लेस सरफेस एरिया विल डिक्रीज द एड्जॉर्प्शन। आंसर इज नंबर 2, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर एड्जॉर्प्शन ज्यादा, और उस टाइम पे टेम्परेचर लो हो तो फिर भी ज्यादा। ओके, सरफेस एरिया ज्यादा होगी, हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा। सो दीज conditions are favored for the adsorption. The extent of adsorption from the solution increases with yes, वेरी गुड। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगी तो एड्सॉर्प्शन जल्दी होगा। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस डिक्रीजेस विथ गुड, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। ओके, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसलिए। Which one of the following is the correct statement? Cavis option is reversible in nature. Cavis option is high at low temperature. Cavis option depends on the nature of gas. And the last one is Cavis option doesn't depend upon the nature of gas. Answer is depends on the nature of gas. It is correct. Okay. Extent of adsorption during the Camis option depends upon option is number 3. Okay, extent of adsorption during Camis option depends upon the adsorbate and adsorbent, मतलब अगर दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड पॉसिबल है तभी वो होगा। ओके, नेक्स्ट, during the adsorption of acetic acid on a porous charcoal from the acetic acid aqueous solution, its concentration of solution बोलो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन हो रहा है, दैट मीन्स एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पोरस चारकोल। तो अब होगा क्या? तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, सिंपल, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना। अगेन, एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिडिक एसिड आपको बोला ही है कि व्हेन, इसकी जगह पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि व्हेन porous charcoal is kept into the acidic acid solution, then its concentration of solution dash dash dash। यहाँ पे दे दिया है वर्ड कि ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन पोरस चारकोल। ओके, मतलब सोल्यूशन में
नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होगा, सिंपल। द नेचर ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट इन द एड्सॉर्प्शन अकरिंग एट हाई टेम्परेचर। तो अब देखो, बोलो again, the nature of forces operating between the adsorbate and the adsorbent in the adsorption occurring at high temperature। तो क्या होगा बोलो? जो हाई टेम्परेचर पे होगा, ओके, केमिकल एड्सॉर्प्शन। गुड। Chemissorption of gas on the solid doesn't depend upon अभी करवा दिया है, pressure of gas। According to Freundlich adsorption isotherm at high pressure, the value of x by m, हाई प्रेशर पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर तो नहीं होगा, हाई प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्या होगा? तो देखो यहां पे लिखा है, लो प्रेशर पे क्या होगा, और जब प्रेशर हाई होगा तब उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इन द लॉगरिथम फॉर्म, बोलो फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है? x बाय एम इक्वल्स के इंटू पी रेस टू 1 बाय एन। अब लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लॉग ऑफ x बाय एम इक्वल्स लॉग k प्लस 1 अपॉन एन, मतलब जो पावर है वो आगे आता है मल्टीप्लीकेशन में, पता है ना? तो कौन सा आंसर होगा बोलो? गुड, नंबर 4। ओके, नेक्स्ट, the plot of x by m versus temperature at constant pressure is known as adsorption isotherm, adsorption isobar, बोलो तो कोई आइडिया है यहाँ पे? अब देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना तो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्म। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में शायद में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो अगर वो कांस्टेंट कोई भी फिनोमिनन होता है तो उसके लिए वर्ड है प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस अगर होती है तो अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है तो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तब उसको बोलेंगे आइसोबार। कांस्टेंट वॉल्यूम देन आइसोकोर। यहां पे आपको पहले से दे ही दिया है वर्ड, क्या? कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या आएगा आंसर? अब समझ में आया? जो हम जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, फ्रूनलिच एड्सॉर्प्शन, तो पीछे क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं हम। ओके, यहां पे आइसोबार आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
represents Freundlich adsorption isotherm. तो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चलो फॉर्मूला के हिसाब से ही हम देखते हैं क्या होगा. x बाय एम इक्वल्स फॉर्मूला है k इंटू पी रेस टू 1 बाय एन. लॉग अप्लाई करो, लॉग ऑफ x बाय एम इक्वल्स लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ पी रेस टू 1 बाय एन, आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा. ओके इतना तो पता ही होगा सबको. अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं. तो y एक्सिस पे हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ x बाय एम. x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, लॉग ऑफ p. ओके तो देखो वहां पे ले लिया है लॉग ऑफ x बाय एम और लॉग ऑफ p. तो वो देखे तो देखो तीन जगह पे वो दिया है ना, टोटल 3 जगह पे दिया है लॉग p लॉग p लॉग p. मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं. ओके अब m क्या है, m इज अ स्लोप और c है इंटरसेप्ट. अब स्लोप देखो पॉजिटिव है यहां पे 1/n. पॉजिटिव स्लोप मतलब चलो ये तो कैंसल्ड. पॉजिटिव स्लोप का मतलब है स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं. अगर स्लोप 0 हुआ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. अब बचा अब पॉजिटिव स्लोप, तो ये पता नहीं, ये ध्यान रखना है हमें. ये है पॉजिटिव स्लोप, ये है नेगेटिव स्लोप. ओके तो ये मैंने करवाया फंडामेंटल कि कैसे हो रहा है. तो उसके लिए फॉर्मूला अगर पता हो तो फिर बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. ओके ध्यान रखो ये. ओके इंटरसेप्ट होगा लॉग के, देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिया है. स्लोप होगा 1/n और वो पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट, Freundlich adsorption isotherm is given by expression and then the slope of line in the following plot. चलो log of x by m, log of p. बोलो अब तो सॉरी 1 by n. गुड. अगेन वो फॉर्मूला से ही होगा. ओके Which of the following is less than 0 during the adsorption? तो जो देखो एड्सॉर्प्शन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगी. तो यहाँ पे डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, और एड्सॉर्प्शन जब हो रहा है तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो इट इज ऑल्सो 0. सो आंसर इज नंबर 4. ध्यान रखना ये. Which of the following is not a colloid? चलो अब सेकेंड पार्ट आया. ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया. ओके एड्सॉर्प्शन का. कॉलॉइड कौन नहीं है, मिल्क इज अ कॉलॉइड, ब्लड कॉलॉइड, आइसक्रीम इज अ कॉलॉइड, सुगर सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज बहुत कम होती है यहाँ पे. Okay, so our answer is number 4. Colloidal systems are homogeneous, heterogeneous, suspension और transparent. ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते, वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ये तो पता होगा. गुड. Remember, colloidal systems are heterogeneous system. जैसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल की साइज इतनी कम होती है कि हमें दिखते नहीं है, और लाइट भी पास होती है तो वो क्लियर कट लिक्विड दिखता है. ओके एंड colloidal systems are heterogeneous systems. Next, which of the following is a clear solution? Colloid, true, suspension, and suspensions of the precipitate. Good. अभी मैंने जो सिखाया वही आ गया. ओके
Next, particles of which of the following do not pass through the filter paper? अब देखो, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स पास हो जाते हैं क्योंकि उसकी साइज बहुत कम होती है. कॉलोइड्स हेट्रोजीनियस. सस्पेंशन बताए ना कि सपोज हमने पोछा मार के और डोल में पानी लेके फिर उसको निचोड़ दिया है तो वो जो लिक्विड होगा दैट इज सस्पेंशन. मेन ये तीनों डिफर कैसे होते हैं कॉलोइड से? चलो ये एक दूसरे से डिफर कैसे होंगे? तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल की साइज बहुत कम होती है. कॉलोइड की साइज ट्रू से ज्यादा लेकिन सस्पेंशन से कम होती है. ओके और सस्पेंशन पार्टिकल की साइज तो बहुत ज्यादा होती है. इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई. ओके सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन एंड कॉलोइड्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. तो एक्चुअली यहां पे 3 आंसर हुए. ओके यहां पे सिर्फ लिखना चाहिए कि ओनली कॉलोइड्स, ओनली ट्रू सॉल्यूशंस, ओनली सस्पेंशंस एंड colloids and suspension both. Okay, next. The Tyndall effect is not observed. Tyndall effect है क्या वो तो पता है ना, scattering of light. So it cannot be observed in true solution क्योंकि true solution के particle की size बहुत कम होती है. Next, which of the following is a homogeneous system? Suspension, colloid, true. Easy है ये तो. हाँ, starch solution is a colloid. A colloidal system in which solid is dispersed in a liquid, it is known as solid is dispersed in liquid. Good, it is sol. अगर रिवर्स दिया होता तो लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड तो गुड, देन आफ्टर आंसर विल बी जेल. ओके तो इमल्शन में क्या होगा, क्या बोलेंगे? Very good. Liquid is dispersed in a liquid. Next, when dispersed phase is a solid and dispersion medium is a gas, the colloidal system is again phase solid, medium gas. Emulsion और मिल्क तो नहीं होगा. Smoke and clouds. Okay, dispersed phase are carbon particles and dispersion medium is air. The colloidal system in which the dispersed phase and dispersion medium are both liquids and it is known as gel. Good. Both are liquids. When the dispersion medium is alcohol, the colloidal sol is known as alcohol. So when hydrosol is said, dispersion medium is water. good, and aquasol, same, dispersion medium is water, and benzosol, dispersion medium is benzene. Okay, next, dispersed phase is a liquid
dispersion medium is a solid, so the colloid is known as Gel. good. Milk is an example of very good emulsion. The dispersed phase in a milk is Liquid fat. dispersed phase in milk is good liquid fat, oil in water type है ना. Gel is liquid in solid. अच्छी तरह से लर्न करो. जेल दिया है अभी तो सिखाया. Okay, next, in aerosol is a colloidal system. An aerosol is a colloidal system of, चलो जब भी एरोसोल वर्ड आता है तब आएगा क्या? डिस्पर्शन मीडियम इज अ गैस. तो अब देखो गैस वाले दो एग्जांपल. अब जब एक गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स होता है तब होगा क्या? तब होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, हेट्रोजीनियस तो मिलता ही नहीं है. और कॉलोइडल सिस्टम आपको दे दिया है, मतलब 3 विल नॉट बी अवर आंसर. और एरोसोल वर्ड दिया है तो डिस्पर्शन मीडियम गैस ही होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा. ओके, नेक्स्ट, when the dispersed phase has a greater affinity for the dispersion medium, the colloids are termed as, बोलो, लायोफिलिक. गुड. लिक्विड लविंग, लिक्विड रेपेलेंट याद होगा. ओके, अब देखो यहां पे एक वर्ड हाइड्रोफोबिक दिया है. ओके ओके, हाँ हाइड्रोफिलिक नहीं दिया है. हाँ, हाइड्रोफोबिक दिया है ना. हाँ, फिलिक आएगा, बस वही चेक करना था. विच इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिग्स आर्क मेथड? Gold salt. गोल्ड सॉल्ट. ओके, कौन कौन से बनते हैं? Gold, silver, platinum. ओके, गुड. उसके लिए दूसरा भी एक वर्ड है ब्रेडिग आर्क मेथड का, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन. Sir, it is electrical disintegration. No? डिस्पर्शन भी बोलते हैं. ओके, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, वेरी इजी. कॉलोइड कौन सा है चार में से? Gold salt. गोल्ड सॉल्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे चैप्टर नंबर 5 के कुछ एमसीक्यू.